Good morning. I am Jeevin Jyoti Kumawat, Faculty of Education and Methodology. Today I am going to deliver a lecture on environmental ethics, issues and possible solutions, which is from the course Environmental Science and for the BSc B.Ed, BA B.Ed second semester. So first we should know that what is the environmental ethics terms mean. एनवायरमेंटल एथिक्स जिसे हम हिंदी में पर्यावरण नैतिकता के नाम से भी जानते हैं. इट्स एनवायरमेंटल एथिक्स इज अ डिसिप्लिन इन फिलॉसफी that study the moral relationship of human beings to the environment and its non-human contents. As you can also say that the natural world. And environmental ethics deal with the issue related to the right of individuals that are fundamental to life and well-being. So this is a branch of ethics that studies the relation of the human beings with the environment and how ethics play a role in this environment. And this environment ethics also believes that humans are a part of our society as well as other living creatures also, so which includes plants and animals. These items are a very important part of the world and are considered to be a functional part of human life. Thus, it is essential that every human being respect and honor this and use morals and ethics when dealing with these creatures. Now we have some fundamental issues. One by one we will discuss these issues. First, resource consumption patterns and the need for equitable utilization. It means that it deals with how we utilize and distribute the resources. The disparity between haves and haves not is wondering. There is a disparity between the individuals, communities and countries in uses of the resources. The well-to-do, educated, urban, the well-developer consumers much larger quantities of resources and energies than the traditional rural individual. And this unequal distribution of wealth and access to land and its resources is a serious environmental concern, and equitable sharing of resources form the basis of sustainable development of all the urban, rural and the violent developing countries. Now next issue is the equity disparity in the northern and southern country. In that term we will define that it is concerned with who own resources and how they are distributed. People living in इकोनॉमिकली एडवांस नेशन, जो लोग एडवांस कंट्रीज़ में रहते हैं, दे हैव एक्चुअली द ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज वो यूज़ में लेते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज एज वेल एज वाटर रिसोर्सेज एज कम्पेयर टू द डेवलपिंग कंट्रीज़. And in next issues we will talk the urban rural equity issues. In that, common property of rural communities has increasingly been used to supply the needs of the urban and industrial sector, as the rural sector supplies food and a part of energy need to most towns and cities in India. The common lands of the rural sector are being deprived of their resources. Next we further talk about the need for gender equity. It means that all over India, especially in the rural region, the rural sector, you may observe that the women work longer. जो women है वो ज़्यादा लंबे समय तक काम करती है hours than men as compared to the men, and they are involved in collection and sale of fuel. और वो किस किस काम में इन्वॉल्व है? कलेक्शन ऑफ द फ्यूल, ईंधन इकट्ठा करना, लकड़ी काटना, कलेक्शन ऑफ फॉडर, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, ट्रैकिंग सेवरल किलोमीटर्स, मतलब पानी लेने के लिए वो कई किलोमीटर्स तक जाती हैं. कुकिंग मील्स, खाना पकाने से लेकर स्मोकिंग, मतलब धुएँ के अंदर पकाती रहती है. अनहेल्दी, जो कि उनके लिए एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करता है. एंड आप ये नहीं मानोगे कि ऑन एन एवरेज दे स्पेंड 10 to 12 hours ए डे फॉर वेरी हार्ड, कि एक 10 से 12 घंटे का एक दिन के अंदर वो इतना हार्ड वर्क करती है एवरी डे, रोज़, डेली और ऑफ द ईयर, पूरे साल भर के.
ना तो अनफॉर्चुनेटली इट इज़ द मैन, और ये वही मैन है जो हु प्ले ए डिसिसिव रोल इन मैनेजिंग द विलेज कॉमन एंड देयर रिसोर्सेज, while women have not been given an equal opportunity to develop and improve। इसके फिर भी वुमेन को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है डेवलप होने के लिए। देयर स्टेटस विच इज़ ड्यू टू ए लोअर एक्सेस टू एजुकेशन and health care than that of man. This has deep implications for the rate of utilization of natural resources and their conservation. Now we talk next is a issue is a preserving resources for future generation. In that the ethical issue must be considered when we use resources unsustainably. If we overuse करते हैं, misuse करते हैं इन नेचुरल रिसोर्सेज का एंड एनर्जी का फ्रॉम फॉसिल फ्यूल और फ्यूल, तो हमारा फ्यूचर जनरेशन जो आने वाला है विल फाइंड सर्वाइवल वेरी डिफ़िकल्ट। तो उन लोगों का सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इन हालातों के अंदर, बिकॉज दे हैव नॉट एनी कंटेंट टू यूज़, उनके पास कुछ नहीं बचेगा यूज़ करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज़ द राइट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के राइट, द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट शेयर द अर्थ विद अस टू हैव ए राइट। जो अर्थ पे जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका भी एक अधिकार है यहाँ पे रहने का, यहाँ पर जो भी कुछ है उनको सही ठीक तरीके से उपयोग करके जीने का। शेयर द रिसोर्स एंड लिविंग स्पेस जो भी है, वी हैव नो राइट टू पुश। लेकिन इन पीपल जो है ह्यूमन बीइंग है वो उन्हें हार्म कर रहे हैं, प्लांट्स को एज वेल एज एनिमल्स को, फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने खुद के फ़ायदे के लिए। दे हैव नो राइट टू पुश ए स्पीसीज़, उनको कोई अधिकार नहीं है किसी स्पीसीज़ को डैमेज करने का, दैट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स टू इवॉल्व टूवर्ड्स एक्सटिंक्शन। Cruelty to animals is a crime that must be regarded seriously and action must be taken against offenders। तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए जो कि इस तरह का काम करते हैं। नेक्स्ट हम इशू की बात करते हैं, दैट इज़ ethical basis of environment education and awareness। It means the most important concern is related to creating an ethos that will support a sustainable lifestyle in society। The Supreme Court of our country has ordered that every young individual at school and college at level be exposed to a course on environment। इसीलिए अपने गवर्नमेंट ने ही डिसाइड कर लिया, कंट्री ने ही, कि हमारे स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे हम एक ऐसा एनवायरमेंटल कोर्स स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि स्टूडेंट जान सके एनवायरमेंट क्या है, क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, क्या उनका यूज़ है, क्या उनका बेनिफिट इफेक्ट है, जिससे कि वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को सेव करने की कोशिश करें, बिकॉज वी हैव द लिमिटेड रिसोर्सेज इन आवर अर्थ। इफ़ वी आर टेकिंग फ्रॉम द अर्थ एंड वी ऑल्सो गिविंग टू द अर्थ, हमें अर्थ को देना भी होगा, हमें प्लांटेशन करना होगा, हमें नेचुरल रिसोर्सेज की क्वांटिटी को बढ़ाना होगा। तो ये हमें स्कूल के अंदर सिखाया जाता है बाय द एनवायरमेंटल सब्जेक्ट्स। So these are based on valuing natures as resources and appreciating the beauty of nature and treasuring the magnification of the wilderness। The next resources comes as the issues comes as the conservation ethic and traditional value system of India। ड्यूरिंग ओल्डन टाइम्स हमने देखा होगा पीपल हैव ऑलवेज वैल्यूड, पीपल जो लोग थे पुराने लोग, माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट, ट्रीज एंड सेवरल एनिमल्स को बहुत ज़्यादा उनको वैल्यू देते थे। एंड दस मच नेचर वॉज वेनरेटेड एंड प्रोटेक्टेड। इस वजह से वहाँ उस टाइम पर नेचर, प्रकृति जो थी वो बहुत ही सुरक्षित थी। सर्टेन स्पीसीज ऑफ ट्रीज हैव बीन प्रोटेक्टेड, कुछ ट्री स्पीसीज़ को तो प्रोटेक्ट भी किया गया था एज दे आर वैल्यूड फॉर देयर फ्रूट और फ्लावर, क्योंकि वो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल स्पीसीज़ थी। So traditions held the animal species as an important aspect of nature, were the basis of local life support system and were integral to bring about a harmonious life। तो हमें ही कुछ कोशिश करनी होगी इन सभी को सेव करने के लिए। नाउ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, नाउ टॉपिक कम कि हमें क्यों स्टडी करनी पड़ती है एनवायरमेंटल एथिक्स की। There are some specific points that describe first all we need for our survival and consume from the nature। हमें सबको सर्वाइव करना है और कंज्यूम भी करना है इक्वली फ्रॉम द नेचर, जो कि हमें
नेचर से मिला वो इक्वली हमें सबको मिलना चाहिए जो भी यहाँ पे अर्थ पर है। वी नो वेरी लिटिल अबाउट प्लेनेट अर्थ, हम बहुत कम जानते हैं अर्थ के बारे में। ह्यूमन आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर सर्वाइवल, हैंस दे हैव ए रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड्स देम। जैसे कि ह्यूमन का है, ह्यूमन एक डिपेंडेंट ऑर्गेनिजम्स है जो कि किसी और स्पीसीज पर सर्वाइव करता है, तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरीके से निभाना पड़ेगा और जिनसे हम लेते हैं बदले में हमें भी उनके लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा। द अर्थ इज़ आवर होम, अर्थ ही हमारा घर है, होम फॉर ऑल द अदर लिविंग बींग्स, और अदर लिविंग बींग्स का भी होम अर्थ ही है। तो वी नीड टू रिमेंबर द एज ओल्डर एज, live and let life, we are duty bounded to defend our planet from any harm, and if it is wounded we have to assist in this recovery. Now we find ourselves entangled in the trap of own mindset. There is a famous quote of Mahatma Gandhi, mother nature has enough for our needs but not enough for our greed. Now there are some solutions given. एनवायरमेंटल एथिक्स आर इनकवर्टेड विद अ वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन्स, हमें बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेशन एंड द पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी जो बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा इकोलॉजिकली, सोशोलॉजिकल, इकोनॉमिकली। नाउ इट इज़ कमिंग इन टू फोर्स दैट ऑल मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एज ए होल बाय कंपेशन टूवर्ड्स ऑल लिविंग बींग एंड लेस डिस्टर्बेंस टू नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रिवर, फॉरेस्ट, मिनरल्स एंड फ्रूट्स। तो हमें इन नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्टर्ब नहीं करना है, जितना हम चाहते हैं उतना ही यूज़ ले, नॉट इन द मोर क्वांटिटी। नाउ देर आर ग्रेट एम्फोसिस और लेस यूज, लेस वेस्ट एंड मोर recycling, reuse with energy efficiency system. Ultimately it is all about this sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू हमें इसे सिक्योर करके रखना होगा अपने फ्यूचर के लिए। थैंक यू। आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद माई लेक्चर विच इज़ पावर्ड बाय द ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी वर्जन 2। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी then please mention in comment box. Thank you.